Hi students, good morning. Today I am going to continue chapter number 12, that is electricity. Before continuing this chapter, I would like to recall the concepts which we already had learned. So let's proceed. First of all, we have seen charge. What is charge? Charge is a physical entity which is on the object. किसी object के ऊपर होती है and that can be positive or negative charge. Its unit is coulomb C and its symbol is capital or small q you can write. Then current we have seen. What is current? So current unit is ampere. It is written as capital A and it is denoted by capital I. It's a written name capital I and unit is written as capital A, ampere. Potential difference, that is V, unit is volt, capital V. When you are writing the unit, it is written as capital V. We have also seen three formulas: Q equal to NE, I equal to Q by T or NE by T, and V equal to W by Q. So all these three formulas, what is Q? Number of electrons into the electrons charge. One electron is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb of charge. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसलिए वैसे तो नेगेटिव लिखते हैं, but for numerical purpose we will be going to write only the positive value. Okay. Then we have seen this V that is potential difference. It's a ratio of W by Q. What is W? That is work. And what is Q? Q that is charge. Now current, what is current? Definition of current: the flow of electric charge in a cross section area of a conductor in unit time. या तो rate of flow of charge. एक कंडक्टर में, सपोज ये कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो ऑफ चार्ज होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग करंट. ठीक है. तो करंट का सिंबल हमने देखा आई और उसकी यूनिट क्या है बच्चों? एम्पियर है. Then we have also seen potential difference. What is potential difference? Potential difference is the amount of work done to move a unit positive charge from one point to another. सपोज ये एक पॉजिटिव, ये एक वायर है, मुझे यहां से यहां पे एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो मुझे जितना काम करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V. Its unit is also V. Okay. And current was given by the unit of current, that is ampere, was given by French scientist Andre Marie Ampere, whereas potential difference was given by Italian scientist, that is Alessandro Volta. इसी के नाम पे से इनकी यूनिट्स गिराई गई है. तो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर स्केलर क्वांटिटी. देखो इनका डायरेक्शन है, बट डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है करंट या वोल्टेज को डिस्क्राइब करने के लिए. ओके. तो लेटर स्टडीज में आएगा कि वेक्टर्स को वैसे हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं. ठीक है. Now, some units are there. 1 ampere equal to 1 coulomb per second as per our definition. Charge per unit time. तो 1 coulomb per second हो गया. And 1 volt या तो voltage भी इसको बोलते हैं. तो 1 joule per 1 coulomb, that is 1 joule per coulomb. तो इसी फॉर्मूला के ऊपर से ये डेरिवेशन आई है और कुछ भी नहीं, कोई नई चीज नहीं है. ठीक है. एमीटर, एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स करंट. करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस कौन सा है? एमीटर है. ठीक है. ये डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है. और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है. ठीक है. whereas voltmeter is the device which measures the potential difference. वोल्टेज कौन मेजर करता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर को कौन करता है? तो वोल्ट मीटर करता है. इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है बच्चों? तो हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस. अभी रेजिस्टेंस क्या है इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमेशा कैसे लगाया जाता है? सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाता है? तो पैरेलल लगाया जाता है. तो इन दिस टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द ऑल द टोटल डिटेल्स ऑफ सर्किट and related symbols, how they are plug in or arranged in the circuit with the wires. And apart from that, we are going to see very important theory, that is Ohm's law. So let's proceed to our continuing chapter. So let me rub this first of all. तो पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को रिवाइंड करके, तो आपको अच्छे से याद रहेगा. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू सी इलेक्ट्रिक सर्किट. सर्किट,
व्हाट इज सर्किट? तो सर्किट क्या होता है? सर्किट वायर से कनेक्शन में होता है, कई सारे डिवाइसेस अंदर होते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्किट? अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज्ड and continuous path through which current flows। एक ऐसा क्लोज, क्लोज का मतलब ऐसे बंद, कहीं कमरे में बंद नहीं है, यानी कहीं से भी ओपन नहीं है, सारे वायर्स का कनेक्शन प्रॉपर्ली जॉइंट है, उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। ठीक है, तो एक ऐसा क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथवे जिससे करंट पास हो सकता है, तो ऐसे चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इट इज द वेरियस कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द सोर्स ऑफ द करंट। करंट कहां से आता है? सोर्स ऑफ करंट, यानी वो जनरली होगा सेल या तो बैटरी, सेल या तो बैटरी जिसको बोलते हैं। देन सेकंड, अ लोड, लोड, लोड यानी कि बल्ब हो गया या कोई रेजिस्टेंस हो गया, कोई भी चीज ले सकते हैं, बल्ब हो गया, देन कोई दूसरा अप्लायंसेस हो गया, कुछ भी हो गया, एनी अप्लायंसेस, टोस्टर, ओवन, कोई भी चीज ले सकते हैं हम लोग, तो वो हो गया लोड जो करंट लेता है। ठीक है, थर्ड वन, अ स्विच और अ की। स्विच, या तो इसको की भी बोलते हैं फिजिक्स में, स्विच या तो की, जो सर्किट को कंप्लीट करता है, विच कंप्लीट्स द सर्किट। टू ओपन और क्लोज द सर्किट, ये स्विच किस लिए होती है? टू ओपन और क्लोज द सर्किट। क्लोज यानी उसको बंद करना नहीं, यहाँ पे फिजिक्स की लैंग्वेज में क्लोज करना यानी सर्किट में करंट फ्लो करवाना होता है। एंड अ फ्यूज, फ्यूज तो बहुत ही जरूरी है। फ्यूज, फ्यूज इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है बच्चों? जब कभी भी हैवी लोड या हैवी करंट पास होता है तो सबसे पहले फ्यूज ट्रिप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे घर के सारे अप्लायंसेस बच जाते हैं, अदरवाइज तो फुका जाते हैं, पूरे जल जाते हैं। उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। ऑल कनेक्टेड थ्रू अ कनेक्टिंग वायर्स, और क्या लगता है बच्चों? वायर्स लगते हैं। ठीक है, वायर्स के थ्रू ही कनेक्शन होता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सर्किट में लगती हैं, तो कौन कौन सी चीजें लगती हैं, उनके सिंबल्स क्या है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे व्हेन द की इज क्लोज, अब की जो है बच्चों, की देखो ये की है, बट यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको बोलूंगा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ठीक है। इसमें की जो है, की इज अनप्लग्ड, की इसमें से निकाल दी गई, अनप्लग्ड। और जब इसी चीज को मैं ऐसे बीच में एक टपका रख दूंगा, पॉइंट रख दूंगा, डॉट रख दूंगा, इसका मतलब की हमने प्लेस कर दिए, तो इसको मैं बोलूंगा क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट यानी की इज प्लग्ड। यहां से करंट पास नहीं हो रहा है इसमें से, और इसमें से करंट जो है वो पास हो रहा है। करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, इसका मतलब ये होता है। तो ओपन सर्किट में करंट पास नहीं होगा। आप लोग जब फैन चलाते हो तो फैन चलाने के लिए आपको स्विच गिरानी पड़ती है, स्विच चालू करनी पड़ती है, तो वो स्विच यही स्विच है, इस तरह की स्विच है। सर्किट डायग्राम में हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो स्विच जब आप ऑन करोगे तभी करंट फ्लो करेगा, वरना करंट फ्लो करने वाला नहीं। ठीक है, तो ये ओपन सर्किट है जिसमें कोई बीच में डॉट नहीं है, और डॉट अगर आ जाएगा इसका मतलब क्लोज सर्किट है, करंट वहां से पास हो रहा है। ठीक है, सो हम लोग एक टिपिकल सी सर्किट डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। चलो, ये है हमारा बैटरी, बैटरी या तो सेल हम इसको बोलते हैं। तो जो लंबी लाइन होती है ना, उसको हम लोग पॉजिटिव यानी पॉजिटिव टर्मिनल रखते हैं, और जो छोटी लाइन होती है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से वायर पास हो रहा है। अब हम लोग एक लोड भी बीच में लगा देते हैं, लोड से फॉर एग्जांपल एक बल्ब लगा देते हैं हम लोग। ये बल्ब हमने लगा दिया, ठीक है। फिर हम लोग इसके अंदर एक एमीटर भी लगा देते हैं। एमीटर हमने देखा था क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। कैसे लगता है? सीरीज में लगता है।
एक स्विच लगा देते हैं हम लोग। चलो, अब इन सबको हमने लगा तो दिया, बट अभी तक हमको कुछ पता नहीं है इसमें। तो ये टिपिकल सी सर्किट डायग्राम है, अभी तक इसको कंप्लीट करना बाकी है। तो कैसे कंप्लीट करना बाकी है? करंट कैसे फ्लो करता है, कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है? तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो करता है। तो ये है अपना करंट का डायरेक्शन, ऐसे जाएगा करंट। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज द लोड। इस केस में ये हमारा बल्ब है, इसको बल्ब बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से, तो ये वाला पार्ट जो एमीटर का होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइंट होगा, और यहाँ पे जो इसका वायर होगा वो नेगेटिव। ये एक डिवाइस है, जैसे डिवाइस होता है बैटरी का, वैसे दो कनेक्शन होते हैं। तो वो तो इसको लिखते हैं सिंबल में, ऐसे लिखते हैं। यहाँ से करंट पास हो रहा है, ये की है। अब यहाँ मैंने एरो तो कर दिए, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये सर्किट अभी तक इनकम्प्लीट है। यहाँ पे ये मैंने बीच में कुछ भी नहीं किया हुआ है। ये है अपना एमीटर, और ये है अपनी की, इसको हम लोग बोलते हैं की। और ये क्या था हमारा? बैटरी। बैटरी अभी की अभी तक ओपन है, यानी करंट पास नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं इसके अंदर डॉट करूंगा, यानी कि अब सर्किट यहाँ पे कंप्लीट है और करंट जो है वो पास होगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें लग सकती है इसमें। जैसे बल्ब को निकाल के, ये बल्ब है अपना, बल्ब को निकाल के रेजिस्टेंस रख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो ऐसा है, इस टाइप से। वो हार्ट बीट होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, वैसा। बट इसको पॉइंटेड रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेजिस्टेंस। और अगर मुझे इसमें वोल्ट मीटर भी ड्रॉ करना है, तो वोल्ट मीटर में इसके पैरेलल करूंगा। ये जो वायर होता है ना, कनेक्टिंग वायर, जहां से रेजिस्टेंस होता है, वहां से मैं एडिशनल वायर लगा के वोल्ट मीटर को कनेक्ट करूंगा। तो ये वोल्ट मीटर, क्योंकि पॉजिटिव यहां से आया तो ये पॉजिटिव होगा, और यहां से करंट जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर लगता है रेजिस्टेंस के पैरेलल में, लोड के पैरेलल में, जबकि एमीटर लगता है सीरीज में, मेन सर्किट में लगता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें तो हम लोग देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक टिपिकल सी सर्किट डायग्राम है, स्कीमेटिक सर्किट डायग्राम है। अगर आपको ड्रॉ करने बोले 2 मार्क में इसको पूछ सकते हैं। तो आपको एमीटर बताना है, की बतानी है, बैटरी बतानी है, रेजिस्टेंस बताना है, वोल्ट मीटर बताना है, तो बता सकते हैं। बता दो, मैं तो बोलता हूँ ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम लगेगा। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब कुछ डायग्राम्स देखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, तो वो हम लोग देखेंगे। सिंबल्स यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोग ओरिजिनल बल्ब लेके नहीं आ जाएंगे, हम लोग ट्यूबलाइट या टोस्टर या ओवन लेके नहीं आ जाएंगे। हम लोग जब भी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो सर्किट में सर्किट डायग्राम से शो करेंगे। तो डायग्राम में सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल किस चीज के कौन से हैं? तो लेट्स प्रोसीड टू दिस। एन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल, एक सेल अगर है, सिंपल सा एक सेल है, पेंसिल सेल भी इसको अगर बोल सकते हैं, तो इसका सिंबल कैसा है? ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, सिंगल सेल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। इसका काम क्या होता है बच्चों? टू प्रोवाइड द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कंटिन्यूसली पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है 2 पॉइंट्स के बीच में, यानी करंट प्रोवाइड कर रहा है ये। सेकंड, बैटरी। बैटरी, ये तो एक सेल है। अगर 4-5 सेल अलग से हम लोग ज्वाइन करते तो वो बैटरी, बड़ा सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना वो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव। अब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, ये याद रखना बच्चों। फिर गैप, ऐसा, ये दिमाग में रखना। पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ज्वाइन नहीं करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, तो पहला, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव डिफरेंस है, तो लास्ट में यहां होना चाहिए नेगेटिव। अब यहां मैंने कितने सेल ड्रॉ किए? 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 वोल्ट। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, हर एक सेल अगर 2 2 वोल्ट का हुआ, ऐसा भी हो सकता है। ईच सेल इज ऑफ 2 वोल्ट, तो ये 4 का नहीं रहेगा, फिर ये कितना हो जाएगा? ये 8 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है,
तो डिपेंड करता है कौन सा है, कितना है, किस तरह से है। तो वो अगर हर एक 1.5 वोल्ट का है तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है ये, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो बल्ब है, अभी हमने देखा था बल्ब कैसे ड्रॉ करता है सर्किट में, एक ऐसा वी बना दो और ऊपर ऐसा हार्ट बना दो, ऐसा इस तरह से, ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। देन या तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे सीधा बना दो और एक ऐसा गोल बना दो, ऐसा भी बना सकते हैं, जैसे भी बनाना हो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका यहाँ पे जॉइंट जो होगा वो बच्चों कैसे होगा, तो ये टर्मिनल्स के थ्रू होगा, यानी यहाँ से करंट आएगा, कनेक्शन लगेगा इसका, ठीक है। कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन रेजिस्टेंस और रजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर या तो रेजिस्टेंस, ये क्या काम करता है, ये करंट को रोकता है, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो इसका सिंबल बहुत ही सिंपल है, ऐसे आपको दिखा देना है, ठीक है। इसका काम क्या है, इट ऑब्स्ट्रक्ट द करंट इन सर्किट, सर्किट में करंट के फ्लो को रोकता है। देन रेजिस्टेंस हो गया। देन वेरिएबल रजिस्टर, ये तो सिंपल एक ही रजिस्टर है, एक ही तरह का प्रोवाइड करता है। वेरिएबल रजिस्टर, आपने जो पंखा चलाते हैं इसमें नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5, तो वो पंखा 1 पे करेंगे तो एकदम स्लो हो जाएगा, 2 पे करेंगे थोड़ा फास्ट होगा, 3 पे करेंगे थोड़ा और फास्ट होगा। इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। करंट तो उतना ही पास हो रहा है बट करंट को ज्यादा अमाउंट में रोकता जा रहा है। जैसे हम लोग नंबर कम करेंगे, ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, करंट कम पास होगा। करंट ओरिजिनल तो उतना ही पास हो रहा है बट जो करंट का जो लेवल है जो पास होने का फैन में, वो कम होता जाएगा। तो वो कौन करवाता है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस करवाता है, वेरिएबल रेजिस्टर या तो रेजिस्टेंस। तो इसके दो सिंबल है, बहुत ही सिंपल। एक तो जो ये ओरिजिनल है वही, और इसके ऊपर ऐसे एरो आएगा। एक तो ये कर सकते हो, या तो ऐसा एक तो बना दो और इस तरह से नीचे से ऊपर एक एरो क्रॉस करता हुआ इसको। तो इन दोनों में से कोई भी एक सिंबल आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम के लिए तो दोनों ही याद करना है क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये और है, ठीक है, इसमें भी और है, दोनों दोनों ही नहीं करने हैं, कोई भी एक कर सकते हो। देन आ गया एमीटर, अभी हमने देखा एमीटर। एमीटर कैसे ज्वाइन करते हैं, सर्कल बना दो और बीच में लिख दो ए, एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा। ये क्या मेजर करता है, तो करंट मेजर करता है, हमने देखा है। इसका भाई वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इट मेजर्स करंट एंड इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को मेजर करता है। स्विच और अब प्लग की स्विच, स्विच या तो की, तो वो इस तरह से होती है, अभी हमने देखा था। और और ऐसी भी होती है, बट ये है बच्चों ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मैंने बताया था, करंट पास नहीं हो रहा, यहाँ बीच में डॉट नहीं है। एक दूसरा ये भी सिंबल है, अगर ये डॉट इसका जुड़ जाएगा तो स्विच सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन सर्किट है। वैसे ही स्विच की फॉर क्लोज्ड सर्किट, सोचो क्या आएगा, एक डॉट बीच में आएगा और इसमें
इस टाइप से ज्वाइंट हो जाएगा। वो पूरा ज्वाइन करके नहीं दिखा रहा हूँ वरना गैप दिखेगा नहीं। चलो कर देते हैं, आपको पता चलेगा। ठीक है, इस तरह से होता है वो। नाउ फ्यूज्ड। बच्चों फ्यूज, फ्यूज क्या होता है? फ्यूज जो होता है वो एक्स्ट्रा करंट को रोकता है। तो फ्यूज का हमारा काम ये है, वो सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है। तो सेफ्टी डिवाइस इसका जो इस टाइप से ये सर्किट को कंप्लीट करता है। जैसे ही करंट एक्स्ट्रा पास होगा ना, तो ये सर्किट वायर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। बहुत ही लो रेजिस्टेंस का होता है ये, तो तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा जब एक्स्ट्रा करंट पास होगा तब, और हमारे अप्लायंसेस को बचा देगा। आजकल फ्यूज घर में यूज नहीं होता, आजकल एमसीबी पिन होती है। आप अपने घर के मेन सर्किट बोर्ड में देखना, एमसीबी पिन होगा वहां पे। ठीक है। और दूसरा, वायर्स कैसे ज्वाइंट होते हैं? वायर्स अगर ज्वाइंट है वायर तो डॉट होगा। ठीक है, ट्रायंगल में है तो इस टाइप से डॉट होगा। ठीक है, ये जॉइंट है। Now wires without joining, विदाउट ज्वाइनिंग, तो विदाउट ज्वाइनिंग कैसे जाएगा? ये एक मेन वायर है ऐसा, इसका मतलब है कि ये ज्वाइन नहीं हो रहा है, ये ऊपर से कहीं से जा। ठीक है, तो ये था अपना इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंबल सारे के सारे। आज हमने इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस का रिकॉल किया। पहला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट देखना, और दूसरा हमने इलेक्ट्रिक सर्किट देखा और उसके सिंबल देखे। जब तक ये दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक आप लोग ओम्स लॉ समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ करने के लिए सर्किट डायग्राम ये सब देखना बहुत ही जरूरी था। तो ये सभी डायग्राम्स का रट्टा मारना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम आएगा। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा उसमें भी बहुत काम आएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ। तब तक के लिए पहले 3 वीडियो जो है मेरे इलेक्ट्रिसिटी के, वो देखना मत भूलना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, today we are going to discuss very important topic of chapter 12 electricity, that is Ohm's law. Very important topic, Ohm's law. Now what is this Ohm's law, where it is applied? So in last video we have seen regarding electric circuits and the related symbols. Now in electric circuit, and whenever and wherever there is current and potential difference, Ohm's law is applicable. Okay, so let's proceed. What is Ohm's law? चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू आई आर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है V। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। R क्या है? तो R है रेजिस्टेंस। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहली बात तो ओम्स लॉ किसने बताया? तो ये एक जर्मन फिजिसिस्ट था जिसका नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। कौन से ईयर में? 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने ये हमको बताया ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ है क्या? द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, is directly proportional to the potential difference, directly proportional to the potential difference applied across its end, providing that physical conditions such as temperature remains constant. 4 बार इसको बोलते जाओ तो रट्टा हो जाएगा। The electric current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its two ends, providing that the physical condition there such as temperature remains constant. यानी इलेक्ट्रिक करंट I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V को। इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा। सिंपल लैंग्वेज में ये याद रखो। टू रिमूव दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी पुट अ कांस्टेंट टर्म R। प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के बाद हमने रखा इक्वल टू, और इक्वल टू के जगह पे यानी इक्वल टू लगाते तो कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो वो क्या है? दिस R। व्हाट इज R? वेयर R is constant of proportionality,
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये क्या है, आर क्या है बच्चों, तो आर है रेजिस्टेंस। आर क्या है, रेजिस्टेंस है। इसमें से अगर मुझे आर का फॉर्मूला चाहिए तो आर को मैं अगर सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये आई नीचे चला जाएगा, तो V बाई आई हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला भी बन जाता है रेजिस्टेंस के लिए। हमको अगर I चाहिए तो वो भी बन जाएगा, R नीचे चला जाएगा, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई आर। तो ये दो फॉर्मूला, एक्चुअली तीनों तीन फॉर्मूला जो है हमको न्यूमेरिकल में बहुत ही काम लगने वाले हैं। तो व्हाट इज दिस ओम्स लॉ, पहले तो ओम्स लॉ दिया किसने, एक जर्मन फिजिसिस्ट था जॉर्ज साइमन ओम, उसने दिया था। कौन से ईयर में दिया था, 1827 में दिया था। व्हाट इज दिस ओम्स लॉ, ओम्स लॉ है क्या, तो ओम्स लॉ क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इन अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied to its two ends, providing that the physical condition यानी टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, प्रेशर, ये सारी चीजें जो है, मॉइस्चर, ये सारी चीजें जो है वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अवर लॉ हम लोग इसको मैथमेटिकल स्टेप में लिखें तो V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V बाई आई। अगर ये I की वैल्यू चाहिए तो R, ये I नीचे चला जाएगा, और इसी में से अगर मुझे आई की वैल्यू चाहिए तो आर नीचे चला जाएगा। तो तीनों फॉर्मूला बेसिकली एक में चाहिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ओम्स लॉ। ठीक है, 2 मार्क में पूछे तो आपको इतना लिखना है, और आगे भी पूछ सकते हैं। तो लेट्स सी, वेयर आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। बच्चों ये जो कंडक्टर है ना, एक तरह का वायर है, जनरली कॉपर वायर हम लोग यूज करते हैं, बट और भी बहुत सारे कंडक्टर है। कंडक्टर जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस उसका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो क्या होता है, मेटल्स की अगर मैं बात करूं, सपोज ये एक कॉपर का रॉड है, अगर मैं इसको नीचे से हीट दूंगा तो क्या होगा, आपको पता है मेटल एक्सपांड्स, मेटल एक्सपांड होता है। मेटल एक्सपांड होता है यानी इसके अंदर की जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच का गैप बढ़ेगा। अगर गैप बढ़ेगा तो खुलेगा, एक्सपांड होगा, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तेजी से जाएंगे, समझे। इलेक्ट्रॉन जो बहता है वो फास्ट ट्रेवल करेगा क्योंकि गैप बढ़ गया ना, पहले गैप नहीं था, तो टेम्परेचर बढ़ाने से करंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये होता है टेम्परेचर बढ़ाने से करंट का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। समझ आया आपको, टेम्परेचर बढ़ेगा मेटल में तो स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन फास्ट फ्लो करेंगे, यानी उसको रोकने वाला कोई नहीं है, या तो कम रुकेगा वो, तो जब कम रुकेगा तो रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। यू कैन सी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस कम अगर है तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, V अगर कांस्टेंट लेते हैं, से फॉर एग्जांपल V जो है अपनी बैटरी 6 वोल्ट का पावर सप्लाई कर रही है, ठीक है, और रेजिस्टेंस अगर वो जो करंट है वो 2 का दे रहा है, 2 ओम रेजिस्टेंस, ओम की जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ना बच्चों, ये यूनिट वो है दिस वन, इसको ऐसे करते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं ओम, और इस सिंबल को जो बोलते हैं ना वो ओमेगा बोलते हैं। ये सिंबल का है और ये यूनिट है, इसकी यूनिट है। ठीक है, तो सपोज के 2 ओम है तो करंट तब कितना देगा, 6 ये कैंसिल होगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है, 3 एम्पियर। सपोज मैं रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूं, वोल्टेज सेम ही है 6, रेजिस्टेंस सपोज मैंने 3 कर दिया, 3 ओम कर दिया, तो कितना आएगा, 2 एम्पियर। आपने देखा मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाया 2 से 3 किया तो करंट जो है 3 से 2 हो गया, यानी कम हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को डबल करूंगा, इफ रेजिस्टेंस डबल तो करंट गेट्स हाफ, करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस को मैं हाफ करूंगा तो करंट जो है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, डबल हो जाएगा। सिंपल, याद रखना। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली वेरिएबल।
रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस और कुछ भी नहीं है, कंडक्टर में, वायर में करंट को स्टॉप करता है, वो है रजिस्टर। एक तरह का पुलिस वाला है वो, जो बिना लाइसेंस वालों के जो ड्राइवर्स होते हैं उनको रोकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको कोई रोकने नहीं वाला है। इसका मतलब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आपको रोकने नहीं वाला है, और वो फ्रीली मूव करेंगे। बट अगर वही चीज नॉन कंडक्टर अगर है, कार्बन जैसा रॉड हुआ या नॉन मेटेलिक अगर हुआ, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस मेटल्स में कम मिलेगा एंड नॉन मेटल्स में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो रोकने के लिए बहुत है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते नॉन मेटल्स में, और मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इसीलिए। ठीक है, सो जिस जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस या रेजिस्टर, इसको रेजिस्टर भी बोलते हैं, रेजिस्टर फॉलोज ओम्स लॉ, जो रेजिस्टर ओम्स लॉ फॉलो करते हैं तो उनको बोलते हैं ओमिक रेजिस्टर। उनको क्या बोलते हैं? ओमिक रेजिस्टर। और जो फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टर। ठीक है, तो ये हर एक कंडक्टर जरूरी नहीं है कि ओम्स लॉ को फॉलो करता ही है। अलग अलग कंडक्टर की अलग अलग फिजिकल कंडीशन होती है जिसके हिसाब से वो फॉलो करता भी है, फॉलो नहीं भी करता है। ठीक है, तो जो फॉलो करते हैं उनको ओम्स लॉ के हिसाब से ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, जो फॉलो नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी में आपको दिखाऊं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ओम्स लॉ की हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं, आपकी टेक्स्ट में बहुत ही फेमस है। पेज नंबर 203 पे है टेक्स्ट बुक में, एक्टिविटी 12.1 ओम्स लॉ से रिलेटेड है। बाई चांस पूछ सकते हैं, तो लेट्स सी दिस एक्टिविटी। सेट अप अ सर्किट एज शोन इन द डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ अ निक्रोम वायर। निक्रोम वायर हमको सर्किट में लेना है। निक्रोम वायर, निक्रोम वायर को कनेक्ट किया है कॉपर वायर से, बट निक्रोम वायर लेना है ऑफ एक्स वाई लेंथ से 0.5 मीटर। एमीटर लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है, 4 सेल्स और 1.5 वोल्ट ईच लगाना है। अब निक्रोम क्या है? तो निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम एंड आयन, ये चार मेटल्स का मिक्सचर है ये निक्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं व्हाट इज निक्रोम। इट इज अ मिक्सचर ऑफ निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम एंड आयन। तो ये एक एलॉय हुआ। एलॉय याद है ना बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज। मैंगनीज, ओके। सो याद रखना, तो निक्रोम क्या है? तो निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयन का मिक्सचर है, तो ये एक एलॉय हो गया। ठीक है, अब इसको सर्किट में हमको लगाना है, तो कैसे लगाते हैं हम लोग? तो लेट्स सी। ये है अपना एक्स वाई निक्रोम वायर, इसको हमको सर्किट में लगाना है। और सर्किट का जो डायग्राम है हम लोग कैसे बनाएंगे? एमीटर लगा दिया हमने, की लगा दी हमने, और इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ कुछ बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमको लगानी है बैटरी, बट बैटरी एक साथ नहीं लगानी है। क्या करना है? फर्स्ट यूज ओनली वन सेल, पहले एक सेल लगाना है, फिर हमको एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको टेबल भी बता देता हूँ।
ये नंबर, देन नंबर ऑफ सेल्स, उसके बाद लेना है हमको करंट I, उसके बाद लेना है हमको पोटेंशियल डिफरेंस V, और उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस V बाई I। ठीक है, इतनी चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। अब उसमें कैलकुलेशन में है क्या, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमको देखो यहाँ पे ना गैप दिया हुआ है, बट डायग्राम जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो सबके सब एक साथ ही करेंगे। तो 4 बैटरी हमको 1.4 वोल्ट की बोली हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो 4 बोला हुआ है, मैंने बताया था नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। ये हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट कहां से फ्लो करेगा बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि डायरेक्शन हमको करंट का ऐसा दिखाना है। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से करंट जो है वो मूव करेगा। अब हमको यहाँ पे करना क्या है बच्चों, पहले एक ही सेल लगाना है, यानी ये 3 पहले नहीं लगाना है, फिर 2 सेल, फिर 3 सेल, फिर 4 सेल। अब एक सेल जो प्रोवाइड कर रहा है हमको यहाँ पे 1.5 का बोला हुआ है, 1.5 वोल्ट का बोला हुआ है। ठीक है हमको, तो हम लोग यहाँ पे 1.5 वोल्ट ले लेते हैं। नंबर ऑफ सेल पहले 1 लगाएंगे, जो कितने वोल्ट का था, 1.5 का था। ठीक है, 1.5, इसके हिसाब से 1.5 वोल्ट, जैसे ही हम लोग यहाँ करंट पास करेंगे बैटरी कनेक्ट करके, की ऑन करके, तो ये वोल्ट मीटर में हमको 1.5 दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि हमने एक बैटरी लगाई है 1.5 की। ठीक है, तो वोल्टेज हमको दिखाई देने वाला है। उसके हिसाब से यहाँ करंट जो आएगा वो कितना आएगा, तो वो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आपको पता चलेगा। अगर आप स्कूल में करवा रहे हैं, लूड्स है, बीवीएस है, उसमें करवाते हैं, बाकी जब स्कूल में नहीं करवाते हैं, तो आप लोग एज्यूम कर सकते हैं वैल्यूज को। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं, सपोज कि जब करंट वोल्टेज 1.5 एक सेल लगाया था, तो करंट सपोज आया 3 एम्पियर। ठीक है, अब यहां पे हमको वैल्यूज जो है वो देखनी है। ठीक है, वैल्यूज जो है आर इक्वल टू वी बाई आई, वी बाई आई की वैल्यू, वी कितना है 1.5, ये कितना है 3 है, यानी अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करूं 1.5 बाई 3 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये तो 1/2 यानी 0.5, 0.5 ओम, ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस ये आया। चलो दूसरा सेल कनेक्ट करते हैं। जब यहाँ दूसरा सेल कनेक्ट करेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब यहाँ पे जो एम्पियर है वो यहाँ पे सपोज के 4.5 हो गया, 4.5 हो गया। तो 3 अपॉन 4.5, सॉरी 6 हो जाएगा यहाँ, 6 6 6 6 हो जाएगा, 6 एम्पियर। तो ये कैंसिल करेंगे तो 1/2, अगेन कितना आया 0.5 ओम। तीसरा कनेक्ट करेंगे, थर्ड, तो तीसरा यानी कि 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 यानी 4.5 आया। ये वोल्ट सब चल रहा है बच्चों, और ये करंट एम्पियर में चल रहा है। जब 4.5 कनेक्ट करेंगे तब कितना आएगा यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेटली 9 आएगा। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे, 4.5 बाई 9, अगेन 1/2, दैट इज 0.5 ओम। ठीक है, और जब लास्टली 6 के पूरे चारों के चार हम लोग कनेक्ट कर देंगे, यानी कि 6 वोल्ट हो गया, चारों के चार सेल, तब यहाँ पे दिखाई देगा 12 एम्पियर करंट। 6/12, 1/2, that is 0.5. You can see in all the cases the resistance is same. रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आई। क्यों सेम आई, अरे भाई हमने निक्रोम ही लगाया, हमने इसको क्या चेंज किया, नहीं किया। अगर इसको हमने चेंज नहीं किया, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ सही था, टेम्परेचर ना बढ़ा ना कम हो उस टाइम पे, तो वैल्यू सेम ही आने वाली। इसका मतलब क्या है, पहले तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने हमको क्या बताया था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। देखो पहले 1.5 था, फिर 3, फिर 4.5, फिर 6, इंक्रीज हुआ। करंट देखो 3, 6, 9, 12, करंट भी बढ़ा।
यानी V प्रोपोर्शनल टू I था, तो उसके हिसाब से बढ़ा। फिर हमने फॉर्मूला देखी थी V इक्वल टू आई आर, और R की वैल्यू क्या देखी थी V बाई आई, और हमने I की वैल्यू भी देखी थी V बाई आर। इसी के ऊपर से हम लोग ने ली थी वैल्यू। अब आप देख सकते हो यहाँ पे V बाई आई कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये हम लोग लेके आए। अब यहाँ पे वोल्टेज के साथ साथ करंट बढ़ा हुआ है, इसलिए वोल्टेज के साथ साथ जो करंट बढ़ा हुआ है, तो आर तो क्या था अपना कांस्टेंट, तो ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। यानी निक्रोम जो है वो एक ओमिक रेजिस्टेंस हुआ जो इसको फॉलो करता है। ठीक है, एक ओमिक रेजिस्टेंस है जो इसको फॉलो करता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में भी थोड़ा कैमरा नीचे हो गया था तो आपको शायद दिखा ना हो, तो एक बार वापस से देख लेना इस चीज को। ये हमने रीडिंग निकाली है, रीडिंग में वोल्टेज एक एक बैटरी करके बढ़ाते गए। पहले 1.5 था एक सेल, देन 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, उसके हिसाब से जो करंट मिला और उसके हिसाब से हमने आर की वैल्यू यहाँ पे दी थी। ठीक है, तो इस तरह से होगा हमारा कैलकुलेशन। क्लियर दिस वन? तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ में हमको क्या पता चलता है, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, और R जो है यानी रेजिस्टेंस है वो कैसी वैल्यू है बच्चों, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो दैट इज योर ओम्स लॉ। अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ग्राफ पता है ना बच्चों, ग्राफ जो है वो करंट हम लोग यहां पे ले लेते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस वो हम लोग यहां पे ले लेते हैं V। ठीक है, अब यहां पे करंट कितना हम लोग 3, 6, 9, 12 ऐसा है, तो ये 0 ओरिजिन है, 3, 6, 9, 12, 15, ये गैप ले लेते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से वोल्टेज का जो गैप लेंगे हम लोग 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ग्राफ प्लॉटिंग करना है। जब यहाँ पे करंट 3 है तो वोल्टेज तब कितना था 1.5, तो ये 3 के सामने 1.5, देन 6 के सामने 3, 9 के सामने 4.5 एंड 12 के सामने 6। अगर आप इसका एक लाइन बनाओगे तो वो कैसी बनेगी बच्चों, सीधी। इसका मतलब क्या होता है, 9th स्टैंडर्ड में हमने ग्राफ देखा था, इफ द ग्राफ इज हैविंग स्ट्रेट लाइन देन इट इज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट वैल्यू V बाई आई, V बाई आई क्यों लिया, अपने फॉर्मूला में क्या है V बाई आई है, इसलिए V को हमने y एक्सिस पे लिया हुआ है। ठीक है, तो V बाई आई यानी कि इसका और इसका रेशियो जब निकालेंगे तो हर एक का रेशियो कितना आने वाला है 0.5। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लोप, और ये हो गया आपका पूरा का पूरा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ यहाँ पे 2 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में, सभी में पूछ सकते हैं, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की बात हो गई। तो रेजिस्टेंस अपना क्या हुआ बच्चों, R इक्वल टू V बाई आई। रेजिस्टेंस ये रहा, R इक्वल टू V बाई आई की फॉर्मूला। रेजिस्टेंस क्या है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो करंट को फ्लो होने से रोकता है, जो चार्जेस है उसको फ्लो होने से रोकता है। इट्स ऐसा यूनिट इस क्या है बच्चों, ओम। ओम इसकी ऐसा यूनिट है, ओम। ठीक है, और इसका ग्रीक लेटर, इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, तो ऐसे इसको सिंबलाइज करते हैं। इसकी यूनिट क्या है, इस तरह से सिंबलाइज करते हैं इसको। 1 ओम क्या होगा बच्चों, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम क्या होगा, when a potential difference of 1 volt is passing through the conductor प्रोवाइडिंग 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तब रेजिस्टेंस कितना होगा 1 वोल्ट। तो ये डेफिनेशन आपकी हो जाती है 1 वोल्ट की। तो 1 वोल्ट पर एम्पियर, तो ओम की जो यूनिट है ओमेगा, तो ये वोल्ट अपॉन एम्पियर है, इस तरह से वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज क्या हो जाएगा, ये ओम हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। हमने आज ओम्स लॉ इस वीडियो में देखा, और हमने रिलेटेड टर्म्स भी देख लिया, हमने एक्टिविटी भी देख ली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कैमरा नीचे हो गया था तो उसकी वजह से अगर नहीं दिखा हो तो वापस से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझने की ट्राई करना। ठीक है,
बहुत ही सिंपल है। इसका एक्टिविटी के साथ मैंने बताया हुआ है, काफ़ी डिटेल में बताया, तो आप इसको अच्छे से करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।